अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? If you can hear me clearly, please give me a 1 on the chat box. Thank you. All right. So it's wonderful to get back to you. Honestly, I feel excited, motivated to come in contact with you. अभी तो ऑनलाइन ही हो सकता है, तो चलेंगे यही सही. How's everything? How are the classes going? How are you feeling? Everything is good? I assume that I'm talking to the North Campus and the City Campus students. BS Computer Science for the North Campus and the proud BS ERP students from the City Campus. Am I right? Few are from main campus as well. Okay. Mohammed Anas Anwar is saying it's getting complicated to understand everything completely. I agree to that. A few are from main campus as well. All right. But very few, I believe. Okay, so how many of you have joined the Google Classroom? Give me 2 for this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18. All right, still you are looking for the code. That's not good. Because if you are Google Classroom, then you must have got all the material. All right, you can see the code here. You can see the code? Nameer Ahmed, can you see the code? All right. Please join the Google Classroom because I've uploaded the lecture, the video recording of the lecture, the book, everything is available there on Google Classroom. And now as we will be pushing the gear, we'll be going a bit fast. So it is really important for you to have the access so that the things that you may miss in our discussion, you can always consult to the video lecture and you can always go to the book, right? So वही Google Classroom का कोड इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है. Okay, so please ये जो नीले रंग का आपको टेबल दिख रहा है इसमें सीधे हाथ का जो आखिरी कॉलम है ये Google Classroom का कोड लिखा हुआ है. अपनी क्लास के हिसाब से आप उसको प्लीज Google Classroom में एंटर हो जाइए. ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें क्लियर ना हो रहा हो कि Google Classroom में कैसे एंटर होना है, तो you can ask people. There's no harm in asking. और हम सबको बहुत कुछ नहीं पता होता, ठीक है? So no issue at all. Just ask people, get the help, get in it. Today I have planned to complete this slide. In fact, we took actually three classes to complete the first lecture, but it's okay because it's the start. If the foundation is established, once we are in complete picture of what we are going to do, then we can step up on the gas in the remaining classes. All right, people. So थोड़ा सा मुझे बताइए और आपको लिखना होगा विजन क्या होता है? What is vision? विजन क्या होता है? हम ये कोर्स क्यों पढ़ रहे हैं? गोल होता है, ठीक है. ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है. अच्छा, अब ये मैं रिप्लाईज पढ़ रहा हूँ जो आ रहे हैं. टारगेट, ठीक है. But it's actually a long-term thing, right? ये तो समझ आता है ना, down the road 20-30 years. Right. Okay, so इसको define कैसे करते हैं? Something that you can imagine, right?
being able to know what to do. Vision is what we want to do in future, right? Very nice, very nice. Okay, so तकरीबन सभी ने ठीक बताया. Image perceived by mind by reading, right? ठीक है, falling in, ठीक है. That one is a good one. Who was that? Falling onto the retina. ठीक है. Alright, so सबको समझ आ गई है. तो वो जो 3 लोग थे, अहमद और बाबर और बिल्लू, तो हमने ये तय किया था कि गुड हेल्थ किसकी ज्यादा होगी? अहमद की ज्यादा होगी. ऐसे ही था ना? तो उसकी क्या रीजन थी? अहमद की गुड हेल्थ क्यों ज्यादा थी? गुड हेल्थ मिलने के चांसेस क्यों ज्यादा थे अहमद के? या उसकी ईटिंग हैबिट या उसकी स्लीपिंग हैबिट्स क्यों ज्यादा होने के चांसेस थे? He thinks more now. He acted on his goal. How would we know that that Babar and Billu will not act on the goal? Right. Because he knew more about his vision. उन्होंने जिस डिटेल में अपना विजन लिखा था, चांसेस ये थे कि वो उसको अचीव कर लेंगे. एक्चुअली उस एग्जाम्पल से हमने ये बात सीखी थी कि हमारा विजन जो है वो डिटेल्ड होना चाहिए और हमारा विजन क्वांटिफाइबल ऑब्जेक्टिव्स में ब्रेक होना चाहिए. यानी कि ये लिखा हुआ हो क्लियरली कि हम क्या अचीव कर पाएंगे और क्या हम अचीव नहीं कर पाएंगे. यानी कि अगर आप ये बोले मुझे गुड हेल्थ चाहिए, तो आप हमेशा कह सकते हैं मेरी गुड हेल्थ है, क्योंकि मुझसे बहुत सारे ऐसे लोग नीचे हैं जिनकी बिल्कुल हेल्थ अच्छी नहीं. लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि गुड हेल्थ में मुझे वेस्ट लाइन 30 चाहिए, या मुझे एंड्योरेंस चाहिए 2 घंटे की वॉक की, या मुझे पुशअप्स में लगा सकूं 50, तो इस चीज को रिफ्यूट किया जा सकता है. या तो आप लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, या तो वेस्ट 30 होगी या नहीं होगी, या तो 2 किलोमीटर वॉक होगी या नहीं होगी. तो रिफ्यूटेबल एडजस्टमेंट, जिन्हें सही या गलत साबित किए जा सके, आपके विजन में ऐसा होना चाहिए. एंड दैट शुड बी क्रिस्प, दैट शुड बी क्वांटिफाइबल. सिर्फ गुड हेल्थ कहना काफी नहीं है, बिकॉज इट विल बी अ वेग टर्म. जैसे ये बोलना काफी नहीं है कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है. इट इजंट इनफ, इट कैन नॉट बी अ विजन स्टेटमेंट. तो फिर क्या ऐड करना पड़ेगा? मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है जो वेब टेक्नोलॉजीज में इस पे कमांड रखता हो, मोबाइल टेक्नोलॉजीज पे इस पे कमांड रखता हो, डेटाबेस टेक्नोलॉजीज पे इस पे कमांड रखता हो. आर यू विद मी पीपल? कैन आई गेट अ 2 फॉर दिस? वंडरफुल. ऑलराइट, सो अब आज का लेक्चर हम शुरू कर रहे हैं, और आज के लेक्चर से में जो पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो है जनाब पैराडाइम. पैराडाइम क्या होता है भाई? द पिक्चर पैराडाइम कि कोई, ये वैसे तो इस पे लिखा हुआ ही है ऑफ कोर्स, लेकिन अगर कोई बताना चाहे कि अपने अल्फाज में कि भाई मेरे ख्याल में तो पैराडाइम ये चीज होती है. जी, पैराडाइम is the way you see something, your point of view, frame of reference. मुश्किल सी डेफिनेशन लिखी हुई है. लेट मी गिव यू एन इजी वन. ठीक है, नजरिया राइट, परसेप्शन. ठीक है, अच्छा, आई नीड अ नेम in the chat box of a friend of yours, जिसके मुतालिक अभी मैं आपसे ये कहूं कि मैंने आपके एक दोस्त को दरख्त पे चढ़ा हुआ देखा है. Give me a name. नाम आने शुरू हो गए भाई. जकी, गयूर, असद, माज, गयूर दोबारा आ गए, सऊद, वजी, अफाक, रोज, एक्वा, क्वेस. सही भाई? चले भाई, रुक जाए. यूनुस, आसिफ. ठीक है, तो ये आप सबको कैसे पता है भाई ये बंदा जो है वो दरख्त पे चढ़ा हुआ होगा? हाउ वुड यू बिलीव?
इतने सारे आपके दोस्त होंगे, 100-200, अच्छा 100-200 नहीं होंगे तो 15-20, तो why you name that particular guy? हाँ या खातून, तो उसके वजह ये है कि आपका उनके मुतालिक परसेप्शन ये है, आपका उनके मुतालिक क्या है, परसेप्शन ये है कि वो ये कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा चलो, मुझे लेट मी आस्क अनदर क्वेश्चन। आजकल खासी धूप है, राइट? तो अगर आप में से वो कौन से लोग हैं जिन्हें अभी कहा जाए कि यार 2 बजे क्रिकेट का मैच है या फुटबॉल का मैच है, एनीथिंग विच इज इन्वॉल्व फिजिकल एक्टिविटी इन ओपन फील्ड, तो वो फौरन बोलेंगे भाई सब छोड़ो, मैच खेलना। अच्छा भाई, आना शुरू हो गए बहुत सारे लोग, दानियाल, हरीब, नवीद। भाई इतनी गर्मी में क्यों खेलने जाओगे यार? फुटबॉल वाले आ गए, क्रिकेट वाले भी आ गए, पैशन क्रेज। तो इतनी गर्मी में क्या जरूरत है, रात रात में खेल लेंगे। नहीं नहीं, स्विमिंग, हाँ ठीक है, एनीथिंग एनीथिंग। तो भाई ये इसलिए है कि इफ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, you would do it anytime, whether it's 6 in the morning or whether it's 2 in the afternoon, whether it is 2 in the night. ऐसा ही है ना? हाँ सही है, ठीक है। तो ये आपका अपने मुतालिक पैराडाइम था। मैंने आपसे 2 एग्जाम्पल शेयर की, 2 सवाल किए, उससे आपने 2 चीजें देखी कि ये आपका अपने मुतालिक एक पैराडाइम था। ठीक है, अब इस पैराडाइम के होते हुए आप क्या कर पाएंगे, आप ये कर पाएंगे कि क्या कर पाएंगे आप ऑफ कोर्स ये कर पाएंगे कि इस चीज को आप आराम से हैंडल कर लेंगे। आर यू विद मी? आपका अपने मुतालिक नजरिया है, पैराडाइम है, परसेप्शन है, और उसी परसेप्शन से आप चीजें कर रहे हैं। इसी तरह आपका लोगों के मुतालिक ये परसेप्शन है, ठीक है, और उसी परसेप्शन से आप वो काम कर रहे हैं। ये बात समझ आ रही है भाई? बिल्कुल क्लियर है? ऑल गुड, ठीक है। तो पैराडाइम, अब एक जैसे लोगों का अलग अलग पैराडाइम कैसे बन जाता है, सवाल सोचने का ये है कि हाउ people can get different paradigm of the same thing, यानी कि 2 लोग एक साथ आए हैं और उनका अलग अलग पैराडाइम कैसे आ सकता है, सवाल है ना ये? ठीक है, हाँ उसका पैराडाइम इसलिए आ सकता है कि सपोज कीजिए कि एक न्यू बॉर्न है और वो न्यू बॉर्न जो है वो जैसे ही पैदा हुआ तो उसको रेड कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा दिए गए। यस, एक्सपीरियंस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब वो 5 साल का हुआ तो उसको पूछा गया भाई व्हाट्स द कलर ऑफ द स्काई, तो वो क्या जवाब देगा? रेड, क्योंकि उसने अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा कि स्काई का कलर रेड है भाई। तो बिल्कुल इसी तरह हमारी जो अपब्रिंगिंग है, जो हमारे घर में हुई, जो हमारी सोसाइटी में हुई, जो स्कूल में हुई, जो बड़े बहन भाइयों के हाथों हुई, जो दोस्तों के हाथों हुई, तो उस सब ने हम सबको डिफरेंट कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा दी और हम उन्हीं कॉन्टैक्ट लेंसेज से अपने आप को भी देखते हैं, उन्हीं कॉन्टैक्ट लेंसेज से हम अपने दोस्तों को देखते हैं, उन्हीं कॉन्टैक्ट लेंसेज से हम दुनिया को देखते हैं। यकीनन आप सब का वो दोस्त जो who can make fun of any difficult situation, यानी कि हैदराबाद से आ रहे हैं मछली खा के और रात के 2 बज रहे हैं और गाड़ी का टायर हाईवे पे फ्लैट हो गया और दूसरा स्टेपनी है नहीं, बट देयर इज वन गाय इन योर सर्कल
जो इसमें भी you can laugh about it. Give me his name. Muiz. Me? Okay, रमीज भी ऐसे ही है. अजलाल. फैजान कह रहे हैं मैं भी ऐसे ही हूँ. आबाद भी कह रहे हैं भाई ये मैं हूँ. That's me. ठीक है. तो अमीर भी आ गए. ठीक है. तो इससे क्या हुआ भाई? तो ये एक ऐसे लोगों में जिनकी आप रेंगेंगे उनके ऊपर ये वाले कॉन्टेक्ट लेंस लगाएं. अच्छा, आपके वो दोस्त जो अपने मुतालिक ये बोले, अगर वो आपसे आगे बोले कि मैं ये कर सकता हूँ और ये कर रहा हूँ, तो आप फौरन मान जाएं कि हाँ यार ये कर सकता है. मतलब वो आगे बोले कि यार कल मैंने 4 घंटे पढ़ा, हाँ मान लेंगे. वो आगे बोले कि कल मैंने गाड़ी ले ली, आप मान लेंगे. और भी ऐसी चीज जो कि आपके ख्याल में इस वक्त बहुत मुश्किल है, लेकिन वो अगर आगे बोले आप मान लेंगे. गिव मी हिज नेम और हर नेम. तो ये जो अजीज, शहरोज, साद हैं, क्यों आप इनके मुतालिक मान लेंगे भाई? हमाद हैं, हमजला हैं. Because these people have been truthful to you. तो आपका इनके साथ एक्सपीरियंस ये रहा कि जो बोल रहे हैं वैसा ही होगा. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? लेट मी गिव अ फाइनल एग्जांपल. आपके 2 दोस्त फोन कर रहे हैं, ठीक है जी. आपको क्या कर रहे हैं? 2 दोस्त फोन करा. एक ने कहा यार मैं 7 बजे तुझे पिक करूंगा, और किसी और दोस्त ने आपको फोन किया और कहा 7 बजे पिक करूंगा. जो पहला दोस्त था जिसने कहा 7 बजे पिक करूंगा, उसके लिए आप शार्प 6:55 पे रेडी थे. और जो दूसरा दोस्त था जिसने कहा था 7 बजे पिक करूंगा, तो अम्मा ने बोला भाई तुम जा नहीं रहे हो, उसने 7 बजे आना है. तो आप 7 बजे तो बेड से उठे कि मैं अम्मा उसने 7 का कहा है तो 8 से पहले नहीं आएगा. ऐसा. तो ये जो आपके एटीट्यूड में फर्क है 2 दोस्तों के लिए, ये किस बात का फर्क है? ये इस बात का फर्क है कि एक के मुतालिक आपका पैराडाइम ये है कि ही वुड बी ऑन टाइम, जबकि दूसरे के मुतालिक आपका पैराडाइम ये है कि क्या पैराडाइम है? ही वुड ऑलवेज बी लेट. ठीक है जी. अच्छा जी, लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे तो सारे ही दोस्त ऐसे हैं जो कभी वक्त पे नहीं आते. अगर मेरे तो कुछ दोस्त ऐसे हैं कि भाई जो टाइम देंगे 100% उसी टाइम पाएंगे, और मैं भी कोशिश तो यही करता हूँ. पर विद द एज वी बिकम मैच्योर, राइट? ओके. डेफिनेटली बहुत उम्दा. चले जी. तो पैराडाइम हमने किस किस चीज के मुतालिक पैराडाइम पे गुफ्तगू कर ली? पैराडाइम अबाउट आवर सेल्फ, पैराडाइम अबाउट आवर फ्रेंड्स, और इसी कॉन्सेप्ट को आप बढ़ाते चले जाएं. पैराडाइम अबाउट सिबलिंग्स, ये वाला भाई गाड़ी देगा, ये वाला भाई गाड़ी नहीं देगा, है ऐसा? ठीक है. तो उनका पैराडाइम आपके मुतालिक कुछ गलत हुआ होगा ना, तो भाई इसको गाड़ी देने का मतलब है ये क्या करेगा, समझ ना? तो वी हैव पैराडाइम अबाउट एवरीथिंग ऑलमोस्ट. ठीक है जी. और इस पैराडाइम को बदलना बहुत जरूरी है. इस पैराडाइम को बदलना बहुत जरूरी है. उसका क्या रीजन है ये भी मैं आपसे अर्ज करता हूं. ठीक है. उसका रीजन ये है कि जब हमारे किसी चीज के मुतालिक पैराडाइम होता है, तो जब हमारा किसी चीज के मुतालिक पैराडाइम होता है, तो वो अच्छा या बुरा पैराडाइम जो भी सेट होता है, तो जरूरी नहीं है वो हमेशा वैसे ही रहे. उसको
चेंज किया जा सकता है। अगर आपका एक दोस्त है जो हमेशा देर से आता है, लेकिन अगर वो 5 दफा वक्त पे आने लगे तो आपका उसके मुतालिक पैराडाइम बदल जाएगा। क्या ये बात ठीक है? सही है। अब मैं इस गुफ्तगू को एक बहुत खास जानिब टर्न कर रहा हूं, तो इस वक्त आप जरा और से मेरा साथ दीजिए। अच्छा, आप ही के एज के कुछ लोग होंगे जिन्हें कोई फैमिली के इंपॉर्टेंट डिसीजंस में शामिल किया जाता है। जब भी घर में कोई एक फैसला होना है तो राय ली जाती है सबकी, लेकिन आपको अच्छे से पता होता है कि घर में किसकी राय की अहमियत है और किसकी राय की अहमियत नहीं है। ऐसा ही है, ठीक है। और बाकी सबसे शायद अखलाकन पूछ लिया जाता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी राय रियली काउंट्स, ठीक है। अब आप सोचें कि वो लोग ऐसा क्या करते हैं, तो आपको नजर आएगा कि वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके बिहेवियर में होता है और वो उसे डिलीवर कर रहे हैं और वो जिम्मेदार हैं और एक तवील अरसे से एक ऐसी पोजीशन संभाले हुए हैं कि जिसमें दे आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सो मेनी थिंग्स, सो उनकी राय की अहमियत ली जाती है। तो आपकी एज में बहुत दफा ऐसा आपको फील होता है कि यार मेरी बात की तो कोई वैल्यू नहीं है। तो वैल्यू इस वजह से नहीं है कि आपकी एज ये है, वो वैल्यू इस वजह से नहीं है कि आपको अपने बिहेवियर में, अपने एटीट्यूड में वो चेंज लाना होगा कि आपके मुतालिक लोगों की राय बदलें एंड पीपल स्टार्ट टू टेक यू सीरियसली if and only if they are not taking you seriously up till now। तो सिर्फ बोलना काफी नहीं होता कि मैं जी मैच्योर हो गया हूँ, अब नहीं जी अब मुझे अकल आ गई है और अब आई एम बियॉन्ड टीनेज और ये सब कुछ। नो, इट इज टू बी शोन इन द बिहेवियर एंड एटीट्यूड। अब अगर कोई बच्चा आज जाके अपने अब्बा को बोले कि जी मुझे कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ना, तो बोलेंगे अच्छा ठीक है बेटे, फिर आप क्या करना चाहते हैं जिंदगी में? बोले जी मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। अब्बा नॉट टेक इट ना, ठीक है। लेकिन अगर ये बच्चा अब्बा को रोज 6 बजे ग्राउंड जाता दिख रहा है, स्वेटिंग एंड इज वर्किंग आउट, एंड वो जो एक स्पोर्ट्समैन का अटायर होता है और एक एटीट्यूड होता है और एक लुक होती है, वो सब उसमें मौजूद है, तो अब्बा को कम से कम ये तो पता है ना कि ये जो करने की बात कर रहा है उस पर 3 साल लगा चुका है। तो उस बच्चे की बात की वर्थ ज्यादा होगी ना भाई, क्या ख्याल है आप लोगों? तो उसकी बात की वर्थ क्यों ज्यादा होगी? इसलिए ज्यादा होगी कि वो सिर्फ बात नहीं कर रहा, उसने अपने एटीट्यूड से दूसरों का अपने मुतालिक जो पैराडाइम है उसको बदला है, ठीक है। लेकिन यही बच्चा, जैसे अब्बा ने बहुत दफा देखा है ग्राउंड में, जिसका किट बैग जिसे प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जिसके मुतालिक इलाके में एक बज़ है कि यार ही इज गुड, वो अब्बा को बोले अब्बा ऐसा है कि मैं न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ना चाहता हूँ और भाई के फिजिक्स में इंटर में दोनों में 33 नंबर आए थे, तो अब्बा बोलेंगे बेटा दैट इज नॉट योर पीस ऑफ केक, इजंट इट? बात ठीक है गलत है? सही है, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूँ बेटा, आप मतलब पीपल आर एक्सपेक्टिंग थिंग्स फ्रॉम यू और आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, यू जस्ट फोकस ऑन इट, है ना? ऐसा होगा ना। तो आज आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मसला सॉल्व हो गया है अगर आप इस मामले को रेट्रोस्पेक्टिव में देखें। और रेट्रोस्पेक्टिव ये है जी कि जो आपको जब भी ऐसा लगा कि मेरी बात की वर्थ नहीं है, तो आज आपको उसका रीजन पता चल गया। आज तक लोगों ने आपको ये समझा नहीं पाए थे कि भाई तेरी बात की वर्थ क्यों नहीं है इस वक्त, तो अब आज आपको ये क्लियर हो गया कि बात की वर्थ कैसे होती है। इट्स नॉट अबाउट के क्रिकेटर बनने से कोई मना कर देगा आपको, इट्स नॉट अबाउट के आपको कोई प्रोफेशनल गेमर बनने से मना कर देगा,
It's about कि what you have been doing to qualify to say something. Give me 3 for this. अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई और अगर ये वाकई आपका एक मसला था जो आज हल हो गया, अगेन मेरी एग्जाम्पल सारी मेरी लाइफ से आपको मिलेंगी, तो मुझे ना ऐसा लगता है कि पढ़ाई कोई बहुत ही आसान चीज है. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री पढ़ाई बहुत आसान चीज है? अगर एग्जाम ना हो तो पढ़ाई तो बहुत आसान चीज है. इस बात से एग्री? भाई हमारा मसला एग्जाम होता है ना, हमारा मसला पढ़ाई का होता है. अभी देखें आप लोग जो भी सुन रहे हैं, यू आर गेटिंग इट राइट, यू आर एंजॉयिंग इट, और आप उसको अपनी लाइफ के हवाले से सोच भी रहे हैं इन बातों को ऑटोमेटिकली, एंड यू थिंक यस यार ये बात है ठीक है, ऐसा ही है. तो पढ़ा एग्जाम की जब तक बात आए, जब तक कुछ याद करके लिखना ना हो पेपर पे, अदरवाइज तो टेंशन नहीं. अच्छा, मैं आपको ये बता सकता हूँ, चूंकि मैंने पढ़ाई बहुत देर में अपनी जिंदगी में शुरू की, लाइक ऑलमोस्ट 20 साल की उम्र से. तो उससे पहले तक तो मैं ख्वाब क्रिकेटर बनने के थे, तो वो सब ही कर रहे थे जो कोई भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का क्रिकेटर कर रहा होता है. तो पढ़ाई का तो कोई टाइम नहीं होता था, सही. लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि दैट लाइफ वाज टफ, ठीक है. और वो ग्राउंड के 10 चक्कर और वो नेट में वो गुजारना और वो एक्सरसाइज और फिर जिम, उसके बाद खाने का ख्याल करना, उसके बाद टेक्निकली साउंड होना, दैट वाज अ टफ लाइफ. पढ़ाई में क्या लगता है, एक मेज कुर्सी, किताब खोल के या लैपटॉप खोल के बैठ गए. पढ़ाई में जो सबसे बड़ा मसला है वो डिस्ट्रैक्शन का है, और वो डिस्ट्रैक्शन इसलिए होती है कि वी आरंट पैशनेट अबाउट इट. ठीक है, पैशनेट होंगे बट नॉट पैशनेट इनफ, ठीक है, तो डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं. लेकिन जो चीज मेरा पैशन है उसमें मैं डिस्ट्रैक्ट थोड़ी हूँ. आई एम श्योर कि गाना गाना भी इक्वली डिफिकल्ट होगा, आई एम श्योर कि डांस करना भी इक्वली डिफिकल्ट होगा, एंड आई एम श्योर कोई बिजनेस स्टार्टअप करना भी इक्वली डिफिकल्ट होगा. तो पढ़ाई तो इन सारी चीजों में खासी आसान चीज, ठीक है. तो पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत जिस वक्त पड़ती है, दैट इज अ कटिंग एज मोमेंट. यानी कि यू, इट्स नॉट इजी टू लेट गो व्हाट यू आर बिलीविंग फॉर एजेस. ये बात समझ आती? It's of course not easy, ठीक है ना. It's of course not easy to let go a dream. लेकिन realistically speaking, you need to let go because सारे ख्वाब पूरे नहीं हो रहे होते. तो आपको बस फोकस करना है जो ये चीज से फिर अगली चीज और उससे अगली चीज और उससे अगली चीज. That's how life is, ठीक है. लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, winning is a habit. कोई बंदा एक काम में अच्छा हो जाए तो वो दूसरे काम में भी अच्छा ही होगा, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है. क्योंकि अच्छा होना रिक्वायर्स हार्ड वर्क, अच्छा होना रिक्वायर्स पैशन, अच्छा होना रिक्वायर्स tireless efforts, वो सब ठीक है. तो अगर आप में जरा सा भी नेचुरल टैलेंट है, you will be able to polish it. हाँ, अगर टैलेंट ही नहीं है तो मिसाल के तौर पे हम सब जानते हैं कि हम में से कितने लोग अगर गाना गाना शुरू करते हैं तो कोई हम 10 साल भी उसमें लगा लें तो we'll be able to reach nowhere, right? We are so bad at it, ठीक है. लेकिन जो ऐसी चीजें हैं जिनमें मेहनत करके अच्छा हुआ जा सकता है, तो उसमें क्यों ना अच्छा हुआ जाए. Just putting ourselves to the test. तो पैराडाइम शिफ्ट रिक्वायर्स कि भाई आप कब अपने आप को बदलेंगे. अब ये पैराडाइम शिफ्ट बहुत दफा होता है. अब बातें क्या थोड़ी गाढ़ी होती जा रही हैं,
चले, मेरी मोटिवेशन के लिए अब तक अगर बात समझ में आ गई है तो कैन यू प्लीज प्रेस 5 फॉर दिस, ताकि मैं आगे बात कर सकूं। आपका तो समझ आ रहा है यार? ये बातें तो अच्छे अच्छों को समझ नहीं आती, तुम लोग तो तुम सबको समझ आती। समझ आना इज वन थिंग, अप्लाई करना इज अनदर थिंग। चले, समझ तो है। तो पैराडाइम शिफ्ट इज अबाउट लेटिंग गो व्हाट यू आर बिलीविंग फॉर एजेस। हाँ यार, नहीं बन सकते क्रिकेटर, अब क्या करें? अब सारी दुनिया में जो लोग कुछ नहीं करते वो पढ़ लेते हैं, तो चलो पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, जी बिल्कुल सही कहा आपने। समझना आसान है, अप्लाई करना मुश्किल है, लेकिन समझे बगैर अप्लाई नहीं हो सकता, ये भी बात है। ठीक है जी, तो अच्छा, क्लब के मुतालिक मैं आपको तफसील बताऊंगा इसी तरह। मूविंग ऑन, तो हमारी गुफ्तगू जो हो रही है वो ये हो रही है कि पैराडाइम शिफ्ट कैसे हो। तो लेट मी गिव यू अ वेरी सटल एग्जांपल। चलें एक क्रिएट करते हैं एक एनालॉजी कि क्या आपकी एक दोस्त की शादी हुई, ठीक है, कजिन की शादी हुई, who used to say कि who used to be known as a parents boy और a girl, चले बॉय रख लें। लेकिन भाई हुआ ऐसा कि शादी के एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद वो अपनी बेगम को लेके दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। इन साहब के मुतालिक आपका जो पहला पैराडाइम था that he is the parents boy, तो क्या वो बदलेगा? हाँ ठीक है, काशान कह रहे हैं भाई नहीं बदलेगा, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं बदलेगा। बिग यस, ओके ठीक है। अच्छा जी, ये जो पैराडाइम आपका बदल रहा है, क्यों बदल रहा है, मुझे ये बताइए। हाँ तो ठीक है, लॉजिकल रीजन ये है कि भाई he was a different person before the marriage and suddenly he becomes a different person. How can he leave his parents with whom he has been living for 27 years of his life and suddenly a person come and he is now a different person? ऐसी बात है, ये इसी किस्म के ख्याल आपके ज़हन में आ रहे हैं? And it isn't right, है ना? ठीक है, बात ठीक हो गई। अब हम बात ये नहीं कह रहे कि बदला ही नहीं बदला, हम ये कह रहे हैं कि हमारा उस बंदे, हमने अभी उससे तो बात ही नहीं की ना, हम तो वो लोग हैं जो किसी से पूछते थोड़ी है आपने ऐसा क्यों किया, हम तो बस तय कर लेते हैं साला उसको मार दो, ये काफिर, ये क्यों, हम तो वो वाले लोग हैं। हम तो बेचारे से भी पूछेंगे थोड़ी कि यार तुमने ऐसा क्यों कर लिया भाई, हम तो कहेंगे कि भाई इट्स नॉट इन इट, मतलब हम तो आपसे, आपका जो चेंज आया पैराडाइम में वो तो खत्म हो गया ना। अब हम इस बंदे के मुतालिक गलत समझ रहे हैं तो इसके बाद चले गए बात करने, ठीक है, ठीक है ना भाई। मैं बोला यार वो अजीब आदमी है, करीबी दोस्त था तो उससे बात की जा सकती थी, चले गए, उसने भी बिठाया हमें, यार तू अजीब आदमी है साले, चोरों का गुलाम है, 2 दिन में बदल गया, माँ बाप तेरे यार तुझे पढ़ा लिखा के पाल पोस के इस उम्र तक पहुंचाया और तुम जो हो वो ऐसे निकले, है ना। हाउ मेनी ऑफ यू वुड एग्री कि हम ऐसी गुफ्तगू करेंगे जाके उससे? भाई काफी लोग कह रहे हैं भाई हम ये वाली गुफ्तगू नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो लोग ये कह रहे हैं नहीं भाई ये वाली नहीं करेंगे, फिर आप लोग क्या कहेंगे जाके बताएं?
कि यार बिल्कुल सही किया तुमने, मैं भी ऐसे ही करूंगा। You have created an example for me. I'll follow your footsteps. ऐसा? हाँ जी बिल्कुल, आप लोग ना कंक्लूजन्स की बात कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि क्या आप पूछेंगे क्या जाके? हाँ बिल्कुल सही कहा कि जनाब हम रीजन पूछेंगे, हम उस पे कोई कोई डिसीजन पास नहीं कर देंगे, हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि तुम ऐसे तुम वैसे, हम जब जाके पूछेंगे भाई ऐसे क्या हुआ, इससे तो सब एग्री हो गए ना। तो दिस इज अ पॉजिटिव वे ऑफ हैंडलिंग थिंग कि हम विदाउट स्टेटिंग एनीथिंग अपफ्रंट हम जब उससे पूछेंगे यार ऐसे क्या हो गया, ठीक हो गया। तो वो बंदा जो अब आपसे गुफ्तगू कर रहा है ना, इसमें बहुत सारे लेसन हैं, तो इसलिए वो जवाब दे रहा है, तो सुनिए आप लोग जरा गौर से, इसमें आपकी किताब के काफी सारे कॉन्सेप्ट शामिल होंगे। तो वो बोलेगा कि यार अब आपने पूछा ना उससे, सपोज आई एम दैट गाय, ठीक है, तो आई एम लिविंग विद माय पेरेंट्स, इफ आई एम दैट गाय, ठीक है, तो आई एम आंसरिंग नाउ, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग कंसर्न, आई रियली डू अप्रिशिएट, ठीक है। और आप यहाँ तक आए चल के, एंड यू आर कंसर्न अबाउट मी एंड माय पेरेंट्स, आई एम ऑब्लाइज्ड। तो बात थोड़ी सी तभी यूँ है कि मैं ऑफ कोर्स आप सब मुझे जानते हैं, और आई बीन अ पेरेंट्स बॉय एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। मेरी जिंदगी जो थी वो पेरेंट सेंटर्ड ही है और अभी भी रहेगी, लेकिन मसला ये मेरे दोस्तों के पेरेंट सेंटर्ड होना काफी नहीं, ठीक है। आई होप नो पेरेंट्स आर लिसनिंग टू मी। यार जो लिखा हुआ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्लियर किताब्स कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो पेरेंट सेंटर्ड होना काफी नहीं, क्योंकि पेरेंट सेंटर्ड होके भी आप जिंदगी में बहुत सारे डिसीजंस गलत कर जाएंगे, है शुरू में नहीं लेकिन आगे की जिंदगी में यकीनन ऐसा हो सकता है। तो हम सब मुख्तलिफ लोग होते हैं, हम में से कुछ फ्रेंड सेंटर्ड हैं, बस या दोस्त के लिए जान दे देंगे, कुछ पेरेंट सेंटर्ड हैं, ठीक है, कुछ स्टफ सेंटर्ड हैं, अच्छी गाड़ी कोई हमर देख ली, कोई होम थिएटर देख लिया, कोई यू नो बस सारे दिन फिर उसी की बात होगी, दैट इज स्टफ सेंटर्ड। कुछ स्पाउस सेंटर्ड होते हैं, ठीक है। तो देयर इज नो हार्म, स्पाउस मींस के जो भी रिलेशन में आप हैं, नॉट नेसेसरीली a spouse बट व्हाटएवर रिलेशनशिप यू आर, तो मुख्तलिफ सेंटर्ड हैं हमारी जिंदगी में। तो ऑफ कोर्स लगता है ऐसा है कि पेरेंट सेंटर्ड होना सबसे अच्छी चीज है, लेकिन एक चीज जो इससे भी बेहतर है वो है जिसे हम कहते हैं what way I should say it के प्रिंसिपल सेंटर्ड। तो प्रिंसिपल सेंटर्ड आदमी जो होता है वो ये नहीं देखता कि कौन कह रहा है, वो ये देखता है कि क्या कहा जा रहा है, और जो भी कह रहा है वो उसके मुतालिक डिसीजन लेता है, वो प्रिंसिपल्स पे बिलीव करता है, ठीक है। तो उसके लिए बेगम और अम्मा की लड़ाई में ये बात इंपॉर्टेंट नहीं रखती कि बेगम क्या कह रही है या अम्मा क्या कह रही है, या उसके दो दोस्तों की लड़ाई में ये बात इंपॉर्टेंट नहीं रखती कि मेरा करीबी दोस्त कौन सा है, मेरा दूर का दोस्त कौन सा है। और आपकी एज ग्रुप की एग्जांपल क्या हो सकती है कि उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मेरे रिलेशनशिप में जो है वो क्या बोल रहा है और मेरा बेस्टी क्या बोल रहा है, सही है। तो वो बिलीव करता है कि प्रिंसिपल क्या कहता है इस पर, और प्रिंसिपल वो ड्राइव करता है कहां से, आपने शुरू में याद कीजिए वैलिडेशन प्रिंसिपल्स, वो ही प्रिंसिपल्स है, ठीक है। वो ड्राइव करता है सच क्या है, वो डिफाइन करता है हक क्या है, वो डिफाइन करता है कि ट्रूथ क्या है, वो डिफाइन करता है कि इस वक्त एज ऑफ नाउ कौन सही है कौन गलत है,
किसकी बात प्रिंसिपल पे बेस्ड है और वो उस प्रिंसिपल का साथ देगा, चाहे उसका करीबी रिलेशन उससे हर्ट हो रहा। ये बात कितनों को समझ आ गई? और कम को समझ आई? अच्छा जी। तो वो जो साहब बेगम को लेके अलग हुए थे, वो आपको समझा रहे थे ना, तो वो ये कह रहे हैं कि यार मैंने जब अपने प्रिंसिपल्स को देखा तो बीइंग मुस्लिम मेरे प्रिंसिपल्स डिवाइड हो रहे थे, साउंड आइडियोलॉजी मेरे लिए मेरा रिलीजन था, और उससे मैंने देखा कि कंबाइंड फैमिली सिस्टम में जो मसाइल हैं और मेरे पेरेंट्स जिसका उसका चाह रहे थे, तो मुझे लगा कि यार इट्स बेटर कि मैं करीब ही दूसरे घर में शिफ्ट हो जाऊं, जिससे मुझे लगा कि जो डिवाइन आइडियोलॉजी है मेरे रिलीजन की, उसके प्रिंसिपल्स जो हैं उनको मैं अपनी जिंदगी में बेहतर तौर पर उसको ला पाऊंगा कि जब हम करीब ही रहें। यस आई विल टेक केयर ऑफ माय पेरेंट्स, यस आई विल बी विजिटिंग देम, यस आई विल बी विद देम, बट टू हैव अ सेपरेट लाइफ विद माय वाइफ इज आल्सो अ रिक्वायरमेंट इवन गिवन इन माय रिलीजन। ये उसने बोला। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी ऐसा करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं किया हुआ, तो आप करें ना करें, आप जो आपके प्रिंसिपल्स हैं आप उस पर चलें। लेकिन हियर इज अ रिप्लाई फ्रॉम अ गाय जिसका पैराडाइम आपका चेंज हो गया था। अब आपने जब ये सुना तो आपने कहा वाह यार वो सही बात कह रहा है ना। तो आपका इस बंदे के मुताबिक आप पैराडाइम जो आप पहले उसको अच्छा समझते थे, फिर वो अचानक बुरा हो गया था, अब वो दोबारा अच्छा हो गया। अब ये जो पैराडाइम शिफ्ट है, ये या तो किसी खास मोमेंट पे होता है या किसी खास क्लैरिटी पे होता है, एक खास मोमेंट पे होता है। मैंने देखा है मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ। I was a really shy guy till the time my father was alive, and then after he died early when I was 18, and suddenly I become a different person, being the elder son of the family. तो ये जो पैराडाइम शिफ्ट है मेरा अपने मुतालिक, वो इस वजह से आया कि जो ऑब्लिगेशंस थी that required much more from me, and with that shy attitude I couldn't have done that. तो कोई ऐसे मोमेंट होंगे, कोई ऐसे बात समझ आ जाएगी, कोई ऐसा वाकया हो जाएगा जो हमारा दूसरे उनके मुतालिक भी पैराडाइम बदल सकता है और हमारे अपने मुतालिक भी पैराडाइम बदल सकता है। तो जब भी अगर हमें लगे हम लैग कर रहे हैं या हम नेगेटिव पैराडाइम में जी रहे हैं, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम पॉजिटिव लोगों में रहें ताकि हमारा पैराडाइम बदले अपने मुतालिक भी। अब इफ यू आर लिविंग विद पीपल जो कंटिन्यूसली आपको ये बता रहे हैं कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं करोगे, तो भाई आपका अपने मुतालिक पैराडाइम तो जीरो ही हो जाएगा ना। रादर आपको मुस्तकिल लोग ये बता रहे हैं कि यू विल बी द नेक्स्ट बिल गेट्स, तो हो सकता है आप ओवर कॉन्फिडेंट होके भी जीरो ही हो जाए। तो वी नीड टू हैव बी विद पीपल जो हमारे साथ ऑनेस्ट हो, जो हमें ये बताएं कि तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन साथ में ये बताएं जिस तरह कर रहे हो ना इस तरह कुछ नहीं होने। So that's how our paradigm would be restricted towards the success. तो पैराडाइम दो तरह से बदल सकता है, कोई इंसिडेंट होगा या कोई प्रोसेस होगा या कोई वाकया होगा, बट हमें ये देखना है कि हम उस पैराडाइम में जी रहे हैं जो प्रिंसिपल पे बेस हो, किसी इंसान के लिए ना हो, वो अम्मा के लिए ना हो, वो बेगम के लिए ना हो, दोस्त के लिए ना हो, वो किसी स्टफ के लिए ना हो, ठीक है ना, वो किसी स्टफ के लिए ना हो, वो मेरी जात तक महदूद ना हो कि मुझे सब कुछ मिल जाए, वो मेरे सिबलिंग के लिए ना हो, पेरेंट के लिए, बल्कि वो एक लार्जर पैराडाइम हो जो प्रिंसिपल्स पे गुफ्तगू करे, जो ऑनेस्टी पे बात करे, जो जो बेनिफिट्स फॉर एवरीवन पे बात करे, जो 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 विन विन मॉडल को डिस्कस करे। ये बात कितनों को समझ आ गई? आई अंडरस्टैंड कि ये खासी कॉम्प्लेक्स गुफ्तगू हुई है पिछले 5 मिनट में। सवाल पूछें। मुझे पूछे
यहाँ देखिए जो सवाल आप पुट करेंगे वो तो ऑफ कोर्स मैं ही देख सकता हूँ, एंड यू कैन पुट एनीथिंग, और जो मैं जवाब दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि दैट इज फॉर योर आंसर। ऊपर से चली गई, सही कह रहे हैं आज खान साहब, हमारे भी ऊपर से ही जाती रही हैं बातें बहुत अरसे तक जिंदगी में। People, any question? कैरियर की वजह से दूर हो जाएं, किससे दूर हो जाएं? देखिए जी, सब्जी वाले को तो मैं नहीं रोक सकता ना यार, मेरा तो अपने घर के अंदर कंट्रोल है, बाहर थोड़ी है। अच्छा, नहीं नहीं, सबसे अपने आप को दूर थोड़ी करना है भाई। देखें, अब आप लोग जरा सा रोकें तो मैं गुफ्तगू आपके जो सवाल हैं उस पर बात कर लूँ। अच्छे सवाल आप लोगों ने पुट किए हैं, आई डू अप्रिशिएट। अच्छा, पहला सवाल ये था कि कैरियर की वजह से दूर हो जाएं, किससे दूर हो जाएं? कैरियर की वजह से पेरेंट्स से। यस, हो जाएगा ना, अभी आपकी चॉइस है। बहुत सारे लोग कैरियर की वजह से इसलिए कहते हैं कि यार हम जो पैसे कमाएंगे उससे हम अब्बा की खिदमत होगी, लेकिन ट्रस्ट मी, इट्स नॉट ओके टू लीव योर पेरेंट्स, इट्स नॉट ओके एट ऑल। जिस वक्त उन्हें आपकी जरूरत है आप उसको पैसे भेज रहे हैं, या पैसा कैन नेवर रिप्लेस यू। यस, अगर कोई ऐसा मामला है कि घर बनाना है या ऐसा कुछ है तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज आप यार अपना कैरियर बाद में भी कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। जिस वक्त उन्हें आपकी फिजिकल होने की जरूरत है, वो क्या चाहते हैं यार, आप उनसे 2 बातें कर लें, आप उनके साथ खाना खा लें, हैव अ ड्राइव विद देम, बस, और क्या है। नहीं, आई डोंट बाय दिस। दूसरा, घर वाले भी बोलते हैं सीएस से क्या होगा, सीएस कंप्यूटर साइंस से क्या होगा, कंप्यूटर साइंस के अलावा किससे क्या हुआ? सीएस इज दी थिंग राइट ना, अगले 20 साल हमारे हैं। सुने सबकी, लेकिन अम्मा अब्बा के साथ चलें, ठीक है, योर स्टांस। Do not cut yourself with everybody. How can that can never be a balanced paradigm. You need to live with people. We all need people around. So उनके दरमियान रहते हुए उन इंसानी बिहेवियर्स को बर्दाश्त करते हुए बीच में रास्ता निकालना है। जॉब्स वगैरह के लिए शिफ्ट हो जाए, विजिट ऑफ फर्म, I don't know. I never followed this priority. I never had it. बहुत clarity के साथ। No, what I'm saying is कि whatever your relationship, चाहे वो parents हो, कोई आपका spouse हो, या कोई बहन भाई sibling हो, या कोई आपका relationship हो, girlfriend या boyfriend के sense में, you need to listen to them. जाहिर है वो आप ही से बात करेंगे, but your action in case of a conflict should be based on principle, not on the basis of your liking and disliking and being close to one and not very close to the other. is बात पे decisions now, decisions हो principles पे। If they are all too much and too less, yes, होता ऐसा ही है, होता तो ऐसा ही है। एक भाई है वो बिल्कुल ही बात नहीं कर रहा, एक बहन है जो गले पड़ी है ना, होता तो ऐसा ही है। जो बिल्कुल नहीं कर रहा यार उसके पास जाओ, भाई मेरे साथ चल, आइसक्रीम खाने चला जा, चल यार कुछ करे यार, भाई तू जिसके साथ जाना चाहता है उसको भी साथ ले जाते हैं, ठीक है, उसको क्लोज लाओ, जो गले पड़ी उसको बोल भाई थोड़ा डिस्टेंस दे दे, सांस तो लेने दे, यू नो, गेट अ बैलेंस। हाँ, तो अगर आपको गाना गाना है, ड्रम बजाना है, गिटार बजाना है, बजाते रहिए, साथ साथ कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर लीजिए। कंप्यूटर साइंस की डिग्री दे के अब्बा को कि ये ले अब्बा आपके लिए
pursue your career and whatever, follow your dreams. हाँ तो अब जॉब मिल गई तो चले जाएं, क्या करें, प्रायोरिटीज दें सर। हाँ, इट इज नेवर, देखिए कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत दूर की बात होती है ना, कॉन्फ्लिक्ट तो इसी बात पे जनरेट होता है कि जब आपकी जो चॉइसेस आप मेक कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली किसी एक तरफ जा रही हैं। that actually raise the conflict, no? जी बिल्कुल, जब कराची में जॉब नहीं मिलती तो पेरेंट्स भी तो यही कहते हैं कि बेटा बाहर चले जा जॉब करने। हम तो बात ये कर रहे हैं ना कि इन केस ऑफ अ सिचुएशन जहां पे कुछ ऐसा करना हो जिससे अगली पार्टी एग्री ना हो, हम बात उसी कर। चलो जी, वंडरफुल क्वेश्चंस, आगे बढ़ रहे हैं। तो पैराडाइम क्लियर हो गया। पैराडाइम शिफ्ट की एक आखिरी एग्जाम्पल सुन रहे ना भाई आप लोग? गिव मी वन प्लीज, अप्रिशिएट दैट। फैसला ऐसा है कि आपकी किताब की एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं ना, वरना आप लोग बोलेंगे किताब से तो पढ़ाई नहीं। तो एक खातून है, वो हीथ्रो एयरपोर्ट पे वेटिंग पे हैं, आपको पता है इट्स वेरी बिजी एयरपोर्ट। तो वो कॉफी शॉफी लेके बैठ जाती हैं टेबल पे आके, अखबार पढ़ रही, तो वही देखते हैं कि साहब आके दूसरी तरफ बैठ गए। दैट्स ओके। फिर वो देखती हैं कि उन साहब ने जो बिस्किट की प्लेट रखी थी उसमें से बिस्किट खाना शुरू कर दिया। तो उन्हें थोड़ा सा मायूब लगा, लेकिन चूंकि महज़्ज़ब माशरा है तो शी डिडंट से एनीथिंग, नॉट इवन आई कांटेक्ट। वो अपना अखबार पढ़ती थी, वो अपना अखबार पढ़ते रहे, दोनों बिस्किट खाते रहे। आखिर में एक बिस्किट रह गया, तो उन साहब ने इंतहाई नफासत से उसको दो हिस्सों में ब्रेक किया और आधा खा लिया और अपना कॉफी का मग्गा उठा के चलते बने। इन खातून को बहुत ही गुस्सा है, मतलब उन्होंने कहा कुछ नहीं, शी वाज रियली पिस्ड ऑफ एंड ऑफ द ओपिनियन कि यार किस किस्म का खामड़ आदमी था। तो ये अब बार बार इसी को सोचे जा रही है ना कि मतलब मैं दैट पर्सन हैज रूइंड द डे, ठीक है। तो इनकी फ्लाइट कॉल होती है, अपनी चीजें बताती हैं, बैग से हैंडबैग उठा के लटकाती हैं, तो शी रियलाइज कि एक बिस्किट का पैकेट उनके हैंडबैग में मौजूद है। एंड देन दिस अकर्स टू हर कि एक्चुअली उन्होंने तो अपने बिस्किट निकाला ही नहीं थे टेबल पे। तो व्हाट हैपेंड वाज कि द पर्सन वाजंट ईटिंग इन हर प्लेट, इट वाज एक्चुअली her fault. She was eating out of his plate. और जैसे ही this occurs to her, उन साहब के मुतालिक इनका पैराडाइम शिफ्ट होगा या नहीं होगा? वो जो इंतहाई घामड़ आदमी था, suddenly how gentleman he was, right? This is paradigm shift. This is paradigm shift. Yes. जी सवाल आपका, हाँ जजमेंटल तो वी ऑल आर जजमेंटल, वी ऑल आर द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ जजमेंटल। पैराडाइम शिफ्ट समझ में आ गया भाई विद दिस एग्जांपल कि कोई ऐसा वाकया जो हमारे परसेप्शन को अपसाइड डाउन बदल दे, ठीक है। दिस वाज फ्रॉम द बुक, ओके। चलें जी आगे आ जाइए। एक कॉन्सेप्ट है पर्सनल बैंक अकाउंट का, मुझे आज ये कराना है। वी हैव 20 मिनट्स टू गो इन द क्लास, मतलब शायद 20 मिनट तो नहीं है, लेकिन ये मुझे आज कराना। अब ये जरा पकड़िएगा, ठीक है। बैंक अकाउंट क्या होता है, जल्दी जल्दी मुझे बताना शुरू करें।
ये पीपल, बैंक अकाउंट क्या होता है? हम पैसे वैसे रखते हैं, अकाउंट खुलवा लिया, वहां पे पैसे रखेंगे, ठीक है। तो पर्सनल बैंक अकाउंट क्या होता है? पर्सनल बैंक अकाउंट ये होता है कि जो आपके अंदर आपका इमोशनल स्टेटस है ना, उसका अकाउंट, सम ऑफ ऑल द फीलिंग्स यू हैव इनसाइड, ठीक है। अब क्या ऐसा हो सकता है कि आप बैंक अकाउंट में पैसे ना डालें और एटीएम से निकाल सकें? नहीं हो सकता, राइट। एक बहुत ही मखसूस तरह का अकाउंट होता है, उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट अकाउंट। तो उसमें क्या होता है, जब आप बैंक जाएं और बोलें कि ओवरड्राफ्ट अकाउंट खोलना है, तो वो बेसिकली कैश लाइन होती है। तो वो क्या करते हैं कि अकाउंट खोल के बैंक अपनी तरफ से उसमें पैसे डाल देता है और आपसे कहता है कि आप जितना इसमें से यूज करेंगे उतने पे आपको इंटरेस्ट देना होगा, जब तक आप उसे वापस ना कर दें। अगर इसके अलावा कोई अकाउंट ऐसा नहीं है कि जिसमें बगैर पैसे डाले आप पैसा निकाल सके, ठीक है। ये बात ठीक है? गिव मी वन फॉर दिस। थैंक यू। तो बिल्कुल इसी तरह जो हमारा पर्सनल बैंक अकाउंट है, तो हमें अपने अंदर भी डिपॉजिट्स करने हैं और जितने हम डिपॉजिट करेंगे तो वक्त आने पे उसी वक्त विड्रॉल होगा। अब अगेन आई गिव यू अ सटल एग्जांपल। आप दिल्ली में जा रहे थे अपने, तो सडनली यू सॉ कि डॉगी भागते हुए आ गया आपकी तरफ। अब आप फ्रीज हो गए, ठीक है। वो चार भागते हुए आए, सही है। अब आप अपनी टांगों से ये चाह रहे हैं कि वो भागे। यू वॉन्ट योर लेग्स टू मूव, लेकिन चूंकि आपने कभी उन पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, आपने कभी डिपॉजिट नहीं किया था, तो आज विड्रॉल नहीं हो सकेगा। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? Good. ठीक है। तो अगर हमने ये डिपॉजिट किया होता, हम अपनी फिजिकल फिटनेस पे काम कर रहे होते, हमने वॉक शॉक रनिंग वनिंग कर रहे होते, तो उस इंसिडेंट में हमारा विड्रॉल हो जाता। तो वो जो फिजिकल फिटनेस का रूटीन था वो डिपॉजिट होता और उस वक्त भागना विड्रॉल हो जाता। ये बात समझ आ गई? बिल्कुल ऐसे ही होता है एग्जाम के पेपर्स में। वो क्या वक्त होता है जिस वक्त आपको विड्रॉल चाहिए। अब सारे सेमेस्टर डिपॉजिट किया ही नहीं है तो विड्रॉल कैसे होगा? फिर दोस्तों से उधार पकड़ रहे होते हैं, यू नो व्हाट आई मीन। ठीक है। तो we really need to do what? We really need to invest in ourselves. We need to have deposits in us. और वो डिपॉजिट्स कैसे होंगे भाई? कि जिस चीज में हमें डिपॉजिट चाहिए वो करें। अच्छा रिजल्ट चाहिए एग्जाम में, पढ़ाई करें। अम्मा बस अच्छे ताल्लुकात चाहिए, इन्वेस्ट करें रिलेशनशिप में। किसी भी रिलेशनशिप में अच्छे विड्रॉल चाहिए। भाई से शाम को गाड़ी चाहिए तो आज गाड़ी साफ करने खड़े हो जाए ना खुद से बगैर कहे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है। तो आप यूं समझें, चलो मैं बिल्कुल ही ना इसको आप यूं समझें कि हम सब के साथ एक एक जग लगा हुआ है, ठीक है। और जब भी हम अपने किसी रिलेशनशिप में कुछ अच्छाई करते हैं तो वो हम एक्चुअली क्या करते हैं, गिलास पानी उसमें डाल देते हैं। और जिस वक्त हमें उस रिलेशनशिप से क्यों ड्रॉ करना है तो वही जो हमने पानी डाला होता है वही निकल आता है। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि रात को अगर आपने फ्रिज में पानी की बोतल रखी है तो सुबह मिलेगी ना यार, वरना नहीं मिलेगी। ये बात समझ आ रही? और अगर रात में पानी की बोतल रखी है, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर रात में पानी की बोतल रखी है तो सुबह पेप्सी तो नहीं निकलेगी फ्रिज से।
आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? तो पानी की बोतल रखिए तो पानी निकलेगा, और अगर पेप्सी रखेंगे तो पेप्सी निकलेगी, जूस रखेंगे तो जूस निकलेगा। आर यू विद मी पीपल? राइट। तो जितना हम इन्वेस्ट करेंगे किसी रिलेशन में उतना ही विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? ये तो हो गया किसी और का रिलेशन, और एक हमारा अपने आप से रिलेशन है। जी जी शेख सबूर साहब, ये इस पे अभी गुफ्तगू होनी कि एक हमारा अपने साथ रिलेशन है, इसी तरह उसमें भी हमने डिपॉजिट करने हैं, अपने एटीट्यूड में, अपने बिहेवियर में, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ में, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ में, अपने अटायर में, अपने मैनर्स में, है ना? ये जब हम अपने अंदर ये डिपॉजिट्स करते जाएंगे तो थोड़े ही दिन में लोग हमारे मुतालिक बात करना शुरू करते हैं, और जब जरूरत होगी तो हम अपने आप को साबित कर पाएंगे, क्योंकि वी आर जेन्युइनली इंप्रूविंग आवरसेल्फ। ये बिल्कुल ऐसे ही बात है कि अभी की एज में मैंने दाढ़ी वाड़ी रखी थी, या थोड़े 20-21 साल में, तो माय फैमिली वाज डेड अगेंस्ट, तो लेकिन उसके महीने बाद ही वो सब मुझसे दुआओं के लिए भी कहते थे। अच्छा, लेकिन ये कब्र का हाल तो मुर्दे को पता होता है, लेकिन व्हाट अदर्स बिलीव इज व्हाट दे सी। तो इसीलिए अल्फाज नहीं है, बिहेवियर और एटीट्यूड का जो चेंज है वो लोगों को यकीन दिलवा देता है, ठीक है? तो पर्सनल बैंक अकाउंट क्लियर हो गया। अब एक आखिरी सवाल है कि भाई जब आप अपने आप से बोलते हैं कि मैं कल पढ़ूंगा, तो वो जो अंदर से आवाज आती है कि रहने दे भाई तुझसे नहीं होगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपने एटीएम कार्ड डाला और स्क्रीन ने दिखाया यू हैव नथिंग इन अकाउंट, ठीक है? तो ये जो इनसफिशिएंट फंड्स, राइट, तो ये जो बेहतरी आनी है फंड्स में, ये जिस वक्त डिपॉजिट आप करेंगे, मेक ए स्मॉल प्रॉमिसेस टू योरसेल्फ, तो ये जो आपके अंदर से सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, जाहिर है ऐसे लोगों के साथ रह रहे और खुद आपने भी मतलब कम नहीं किया अपने साथ, अल्लाह मी टू से, जो लोगों ने किया आपके साथ कि भाई तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते बोल बोल के, वो तो जीरो किया ही, खुद आपने भी कम नहीं किया। मुझे इस पे यस चाहिए आप सबसे, या आपने भी अपने साथ कम बुरा नहीं किया, ठीक है? तो आप भी अगर अपने एटीट्यूड और बिहेवियर में चेंज कर लेते तो फर्क आ जाता। सही है? कुछ शहर दे लोग भी जालिम थे, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी, ये पंजाबी है, ठीक है? तो ये जो शौक है ना भाई, इस शौक को खत्म कीजिए, ठीक है? गलती करने का कोई मसला नहीं है, गलती करने का कोई मसला नहीं, गलती करिए, गलती तो हम सब ने करनी है, क्योंकि हमारे फोर फादर्स ने अगर गलती ना की होती तो मैं और आप यहाँ ना होते। ठीक है? आई एम टॉकिंग अबाउट हजरत आदम अलैहिस्सलाम। तो गलती तो मैं भी करूंगा और आप भी करेंगे, दैट के वी लर्न फ्रॉम इट। वो हमने पिछली क्लास में गलती करने पे स्टैंजा पढ़ा था, इट वाज ब्यूटीफुल, पता नहीं आपके उससे गुजरा नहीं गुजरा, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि गलती करेंगे तो असाइनमेंट के मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ, तो उस असाइनमेंट के नहीं मिलेंगे ना, लेकिन अगले 5 असाइनमेंट्स के मिल जाएंगे ना जब आप सीख लेंगे तो। लेकिन अगर आप नहीं सीख पा रहे
तो फिर तो हर असाइनमेंट में ही 0 हो जाएगा। मैं इस किताब में बहुत ही खूबसूरत पोयम है, मैंने आपसे शेयर की है क्या? आई थिंक मैंने वेडनेसडे वाली क्लास से शेयर की है। हैव आई शेयर्ड विद यू अ पोयम फ्रॉम द बुक? Let me share. It's very interesting. और ये आप सबके लिए डेडिकेटेड टू ऑल ऑफ यू। ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन। जी, कैन यू सी दैट? ऑटोबायोग्राफी इन 5 शॉर्ट चैप्टर्स, और इनका नाम जो है वो है पोर्शिया नेल्सन, देयर इज अ होल इन माय साइडवॉक। बच्चों बहुत गौर से देखना है, देखें कितने सटल वे में कितनी बड़ी बड़ी बातें समझा दी। आई एम रीडिंग फॉर यू। I walked down the street. There's a deep hole in the sidewalk. I've fallen. I'm lost. I'm helpless. It isn't my fault. It takes forever to find a way out. Deep hole था, गिर गए, lost हैं, helpless क्यों हैं? क्योंकि ये कह रहे हैं मेरा गलती नहीं थी, it isn't my fault. जब ये कह रहे हैं it isn't my fault, मैं जिम्मेदार नहीं हूं, it takes forever to find a way out. Second chapter. I walk down the same street, there's a deep hole in the sidewalk, I pretend I don't see it. वल्लाह यही होता है ना, हमें पता होता है हम गलत कर रहे हैं। I pretend I don't see it. I've fallen again. I can't believe I am in the same place. But it isn't my fault. मानना नहीं है, ठीक है? It still takes a long time to get out. हम अपने आप से फैसला करते हैं, यार मुझे पता है मैं ये गलती की जा रहा हूँ, मुझे पता है मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मुझे पता है भाई ये मैं पढ़ने बैठा था, ये 2 घंटे फेसबुक पे कहाँ लग गए। It isn't my fault. I walk down the same street, there's a deep hole in the sidewalk, I see it is there, I still fall in. It's a habit. अब ये है ना $1 million एडवाइस है कि falling in is a habit. जिस तरह winning is a habit, इसी तरह failing is a habit. और ये हैबिट उस वक्त तक नहीं बदलेगी जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि I am responsible of whatever is happening to me. No one in this world can do anything wrong or right with me. Whatever good or bad is happening with me is just because of me. जैसे ही एटीट्यूड चेंज होता है तो आप देखते हैं My eyes are open, I know where I am, it's my fault, I get out immediately. जैसे ही आप ये कहते हैं कि I am responsible, आप बाहर आ गए। I walk down the same street, there's a deep hole in the sidewalk, I walk around it. जैसे ही आपने कहा मेरी गलती थी, अब आप नहीं गिरेंगे। I walk down another street. छोड़ देना भाई उस रास्ते को जिस पे मसला है। अब मैं इसे दोबारा उस पैराडाइम से कनेक्ट कर दूंगा। मूव ऑन, मूव ऑन। क्या पता है यहां मसला है, मूव ऑन, पैराडाइम शिफ्ट कीजिए। Then it would become easy to move on. Otherwise, it is very difficult and you will keep falling in. And it becomes a habit to you to fail. फिर आपको बुरा भी नहीं लग रहा होगा। कितना समझ आ गया भाई? चलें जी, लास्ट स्लाइड। बहुत सारे बन गए, जबरदस्त। ओके जी, तो जनाब पीपीए के डिपॉजिट क्या होंगे, आप अपने अंदर कैसे
अपने सेल्फ को बेहतर कर लेंगे तो आप कीप स्मॉल प्रॉमिसेस टू योरसेल्फ, बी कंसिडरेट, लोगों को माफ करें, ऑनेस्ट हो अपने आप से, अपने आप को रिन्यू करें, नई स्किल सीखें, अपने टैलेंट्स को डेवलप करें। और विड्रॉल्स क्या होते हैं? जब आप प्रॉमिसेस ब्रेक कर रहे होते हैं अपने आप से, सेल्फिश हो जाएं, डोंट बी रूड टू योरसेल्फ। ये अपने आप को पनिश करना भी अच्छा नहीं है। बी जेंटल विद योरसेल्फ। माने हाँ यार गलती हो गई, इंसान हूं यार, अब नहीं करो। जब भी वो बोले हाँ यार सॉरी अब नहीं करो, ठीक। डिसऑनेस्ट ना हो, अपने आप से ट्रूथफुल रहें, दुनिया में ट्रूथफुल रहें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट वियर योरसेल्फ आउट, अपने आप को रिन्यू करें, तफरी भी करा करें, सीखें, कुछ गोल्स बनाएं, ईटिंग, स्लीपिंग, फिजिकल हैबिट्स। How can we punish ourselves? ये जो कुछ हम कर रहे थे, जो वो साफ कर रहे थे, बार बार गड़े में गिरे जा रहे थे, this is punishing yourself. Yes, किसी वक्त हम विड्रॉ करेंगे, किसी वक्त डिपॉजिट करेंगे, but it's just that कि जितने ज्यादा डिपॉजिट होंगे तो एक काम चलता रहेगा, लेकिन जिस दिन विड्रॉल बढ़ गया और डिपॉजिट कम हुए तो फिर तो बैंक अकाउंट में कुछ नहीं बचेगा ना। बात ये हो रही है। एज ए ह्यूमंस ऑफ कोर्स विल बी डूइंग बोथ द थिंग्स। अच्छा, यहां तक बात क्लियर है, राइट पीपल? एक सवाल एक साहब ने किया था कि सर अगर फ्रिज में पानी की बोतल रात को रखी और सुबह को पेप्सी निकल आई तो तो बेटा दुनिया में दो ही ऐसे रिलेशन हैं जिनमें ऐसा हो सकता है। एक आपका अपने वालिदैन से ताल्लुक, ठीक है, जिसमें आप मुस्तकिल विड्रॉ कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है आपने डिपॉजिट किया है, हालांकि डिपॉजिट आपने कुछ नहीं किया। When was the last time you actually sat with your mother and asked mom how was your life? आप किन मसाइल से गुजरे हैं, आपके क्या ड्रीम्स थे when you were of my age, आपने क्या क्या किया? When you actually gave time to your father discussing his life? तो मेरे दोस्तों, पेरेंट्स का एक रिलेशन है जिसमें आप पानी रख के पेप्सी नहीं, आप बगैर कुछ रखे रोज पेप्सी ले रहे हैं। समझ आ रही है बात? और दूसरा बंदे का ताल्लुक है अल्लाह सुब्हानहू तआला से। With all the countless blessings we have, we need to see what exactly we are doing. हमसे तो सिर्फ 5 वक्त की नमाज का ही कहा जाता है ना? हमसे वो नहीं हो रही होती। बहुत 3 मान लिया, आसान कर दिया, अल्लाह के जाते तो घर पे 5 पढ़ ली, बस भाई आज तो तेरा भाई छा गया रे। आज तो लग रहा है ऊपर सेलिब्रेशंस हो रही होंगी कि खालिद खान साहब ने आज 5 नमाजें पूरी कर दी हैं घर पे। है ना? That's what our attitude is. तो और सिर्फ इबादत नहीं, हमारा अल्लाह से ताल्लुक जो है वो अल्लाह के बंदों के से ताल्लुक से एसोसिएटेड है। हाउ कंसिडरेट वी आर फॉर अदर्स, हाउ आर वी हेल्पिंग अदर्स, आर वी थिंकिंग बियॉन्ड आवर फैमिली, बियॉन्ड आवर होम, बियॉन्ड आवर सेल्फ। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। इबादत तो चलो बंदा का अल्लाह से है 1 to 1, लेकिन जब अल्लाह के बंदों का ताल्लुक की जहां बात आती है, इट्स वेरी टची, इट्स वेरी सटल, इट्स बहुत नाजुक मामला है। राइट तो ये 2 रिलेशन ऐसे हैं, आपका आपके पेरेंट्स से और आपका अल्लाह से, हम सबका अल्लाह से। तो ये रिलेशन हैं जिसमें पानी रखे बगैर पेप्सियां निकल रही, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं होने का। ठीक है बच्चों? अच्छा, बस यहाँ पे आगे हम गुफ्तगू को खत्म कर लेते हैं, बहुत गाढ़ी बातें हो गई आज हमारी। और मैं आप लोगों की अटेंडेंस का तरीका मेरा ये होता है कि मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ और देन आई पेस्ट इट। That shouldn't be a problem. अगर आप इस वक्त कनेक्ट हैं तो गुड इनफ।
हाँ, नाम हम कॉल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो लोग भी कनेक्टेड हैं उन सबकी अटेंडेंस हो गई है। क्या रिप्लाई कर दूं? सॉरी मैंने मिस किया। दीर्शिक दोबारा कहिए प्लीज। ऑलराइट पीपल, उसको अटेंडेंस को आप फिलहाल छोड़ दें और लेट्स क्लोज द डे टुडे। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग विल बी अपलोडेड और आई एम नॉट श्योर खुल रहा है नहीं खुल रहा है, मेरे ख्याल से अक्टूबर के वक्त से कहीं हम ज्वाइन करेंगे। that is okay अदील, आप किसी भी जगह हो, that's not a problem। आपकी अटेंडेंस, अगर आप यहाँ हैं तो आपकी अटेंडेंस हो रही हो, ठीक है। चलो पीपल, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। किताब पढ़ना शुरू कर लीजिए प्लीज।